welcome to the channel. And now we are going to start with people as resource. It's one of the most demanded and important chapter in terms of your exams, right? So without further delay, let's begin the chapter. Okay, now let me first start with introduction of the chapter. So what we know about people as a resource? People means हम सब लोग human beings, resource which is something valuable for us. Now for example we have water. अब वाटर इज़ वैल्यूएबल फॉर अस. एंड कैसे किसी चीज़ की वैल्यू पता चलती है? हाँ, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि उसकी वैल्यू है, कि वो हमारे लिए कीमती है? जब हमें उसका यूज़ पता चला. सो इफ़ आई हैव वाटर एंड मुझे ये नहीं पता कि पानी क्यों चाहिए होता है, सो ऑब्वियसली मुझे पानी की वैल्यू नहीं पता होगी. और पानी की अगर मुझे वैल्यू नहीं पता तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मनी. सो हमें पता है कि जो मनी है, पैसे हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू अस because in this society whatever we have to purchase, whatever we have to buy, sell something, whatever we have to do is always determined by the money amount. तो जो भी हम आज की सोसाइटी में, आज ही नहीं बल्कि इन दिस वर्ल्ड पहले भी हर समय मनी की वैल्यू रही है. लेकिन मनी की वैल्यू अगर हम बहुत समय पहले चले जाएं, जब जो ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस समय पे पैसों की वैल्यू नहीं थी. कोई पैसे जैसी चीज़ भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उस समय किसी भी चीज़ का बाय परचेज सेल नहीं होता था. लोग अपने लिए जीते थे और लोग एग्रीकल्चर के थ्रू जो अपनी बेसिक नीड्स थी वो पूरा करते थे. रिवर बैंक के पास रहते थे, तो वो उन चीज़ों से अपना गुजारा चलाते थे, लाइवलीहुड चलाते थे. नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने पहले ही यूज़ करने शुरू कर दिए थे, है ना, इसलिए ही नेचुरल रिसोर्सेज कहलाए. उसके अलावा मनी आज हमारे लिए कीमती इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज की सोसाइटी में हमें जो अगर सर्वाइव करना है तो मनी शुड बी देयर. वरना विदाउट मनी यू कांट परचेज फूड, यू कांट परचेज अ हाउस, अ शेल्टर. तो आज के टाइम में जो हमारे बेसिक लाइवलीहुड की नीड्स हैं वो भी मनी से डिसाइड होती हैं. सो दिस एड्स टू द वैल्यू टू द मनी. अब ये जो चीज़ें हैं, जो उसकी यूटिलिटी है, इट एड्स टू द वैल्यू ऑफ द मनी एंड दिस गिव्स यू मनी एज अ रिसोर्स, राइट. अदर एग्जाम्पल इज नाउ रेन. So rain is what? Rain is a resource or it is a source? Rain is a source. Basically, we are going to see now this differentiation between sources and resources. Now, source is something from which we derive the resource. ठीक है, for example, sun is the source. sun क्या है? source है. और इस sun से हमें क्या मिलता है? इस sun से हमें sunlight मिलता है. Sunlight is the resource. Solar energy, yes, it is a resource. But what is sun? It is a source. From where we derive this sunlight, which is a resource. The example can be rain. Now rain, river, then lakes, ponds, all these are the sources. ये सब क्या है? Sources है. And from here what we get is water, which is a resource. तो हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि what is a source and what is a resource. Now we can get a clear cut, crystal clear image of what is a source and what is resource. source तो वो चीज़ हो गया जो हमको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स आर द रिसोर्सेज. Why we are resources? Because as we know कि yes, earlier during the partition we were a liability. हम क्या थे? liability थे. हमारे ancestors they were a liability. जब क्या हो रहा था? partition हो रहा था. Because at that time we were not properly employed. At that time people didn't ever know the value of education, the value of good health. With time people नो अबाउट कि येस वी नीड एजुकेशन, हमें एजुकेशन चाहिए. वाई वी नीड एजुकेशन? फॉर गुड सर्वाइवल, फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ आर एंड एज वेल एज फॉर द नेशन, राइट. नाउ
let's start with the chapter. So the chapter people as a resource doesn't afford to explain population as an asset for the economy rather than the liability. Now here we have to catch the word. So the catchwords here are asset and liability. Now what is asset? Asset is a synonym to resource, and what is liability? Liability is something which can't be used as a resource. इट्स लाइक अ स्टैचू जो कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसका आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ लाइबिलिटी. अब व्हाट इज अ पॉपुलेशन? सो वी ऑलवेज look at the negative perspective of this huge population. So we have a population of almost 135 crore, which is now increasing, and it has almost reached 140 crore. So now we know that earlier we were the people, actually they were considered as a liability on the people for the country, because at that time there were no good institutions, there were no good healthcare facilities which were provided to the people, so they were considered a liability. But now with time, with the development of the IT, that is the information technology industry, we can see that people are becoming more resourceful. Now what we are doing, India is doing, अमेरिका ने बहुत डेवलपमेंट किया. हाउ दे डेवलप्ड? वो डेवलप करे बिकॉज उनके पास थी मैन पावर, एंड दैट मैन पावर, दैट ह्यूमन रिसोर्स ये ग्रो करता गया देयर, एंड आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वहाँ की पॉपुलेशन ने. इंडिया ने उस समय पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री को हम एक सनशाइन इंडस्ट्री भी कहते हैं, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है इससे बहुत ज़्यादा, एक तो ये न्यू है और उम्मीद है लोगों को कि ये जो इंडस्ट्री है इट वुड गिव अ गुड फ्रूट टू द नेशन. तो ये एक अच्छा फ्रूट देगी नेशन को. ठीक है. इस वजह से अर्लियर जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे बात की जाती थी एज अ लायबिलिटी, अब वो आज के समय पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ले चुकी है. दिस पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड अ एसेट, एन एसेट नाउ. अब हमारे नेशन में क्या दिक्कत थी वो ये कि ह्यूज पॉपुलेशन, बट unemployment was there, even it exists today, and due to this COVID-19 we can see that the ratio of unemployment is again taking a rapid speed, and it is reaching at a very height, a very बहुत ऊंचाई पे ये पहुंच रही है obviously. But अभी तो छोड़ो, it is something which is temporary. Yes, there are going to be the long term effects of this COVID-19, but since we don't know much about future, don't think about it more. So हम अभी देखते हैं कि what the book is saying according to the context which is here. यहाँ लिखा है that population जो है it becomes a human capital when there is investment made in the form of education, training, medical care. सो वी नो दिस थिंग कि जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है विच इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 140 करोड़, इट्स रीचिंग 140 करोड़ नाउ. तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन जो है इट इज़ अ ह्यूमन कैपिटल. बेसिकली ये ह्यूमन कैपिटल बन सकती है. सो दिस पॉपुलेशन कैन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल. तो ये एक तरह से जो होपलेसनेस होती है ना लोगों में कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कैसे दुनिया चलेगा, है ना. तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट लुक ओनली एट द नेगेटिव पर्सपेक्टिव, सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन. द पॉजिटिव साइड इज कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि उन सब पॉपुलेशन में से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक ह्यूमन कैपिटल बन सके. अब ह्यूमन कैपिटल बनाना अच्छी सी सब्ज़ी बनाने की इक्वल है. अगर आज घर में शाही पनीर बनता है तो शाही पनीर को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लाइक आपको उसमें क्रीम डालना पड़ेगा जो महंगी चीज़ है, आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने पड़ेंगे जो कि महंगी चीज़ है, बहुत सारा कुछ उसके अंदर डालना पड़ेगा एज एन इनपुट टू गिव अ गुड आउटपुट एज शाही पनीर, राइट.
वैसे ही इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी आर रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ सब्जी एंड ऑल. ठीक है. when ingredients like education, training, and medical care, they are put into this sabzi wala raw jo sabzi hai in it, it becomes a good sabzi like shahi paneer. So what they are saying is, abhi let me write it down for you, underline kar rahi, sorry. पॉपुलेशन बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक होप है यहाँ पे कि ह्यूमन कैपिटल ये बन सकती है. कब कब ये शाही पनीर बन सकती है? व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो आपने एजुकेशन भी डाल दिया, इंग्रेडिएंट फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला ट्रेनिंग रहा, थर्ड वाला मेडिकल केयर रहा. किसके साथ मिक्स करना है इसको? इसको आपको पीपल के साथ मिक्स कर दिया है आपने, एंड यू गेट द ह्यूमन कैपिटल. सो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ बनाने के लिए, शाही पनीर बनाने के लिए इसको रट लो, इसको लर्न कर लो, एंड डोंट learn it basically just by reading it. Try to imagine it. Okay. अभी देखो, let me make this topic more visualizing for you. Right now you know this thing very well कि if you will not go to school for 1 year, for 2 years, let's say for 2 years, you missed your school in 9th and 10th. आपने 9th 10th स्कूल मिस किया. ठीक है. जब 9th मिस हुई आपकी, आपने कितना सारा जो अपना पढ़ाई था उसको मिस कर दिया. 10th में कैरियर अपॉर्चुनिटी जो होती है आपने उसको मिस कर दिया. आपने 2 इयर्स का ये जो ब्रेक लिया है, ऑल्दो कोई नहीं लेता है, इट्स समथिंग जो मैं केवल एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि इफ़ आपने 2 सालों तक भी एजुकेशन को नहीं लिया एंड आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं और से ट्रेनिंग नहीं दिलवाया, किसी दूसरी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं दिलवाया, आप बीमार रहते हो और आपके पेरेंट ने कहा कि वी डोंट हैव मच मनी और वी डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस मेडिकल केयर, इट्स समथिंग जो आई डोंट लाइक इट ऑल, कि हॉस्पिटल जाओ और इलाज करवाओ, मुझे नहीं पसंद आता. बी एट होम, सही हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज जस्ट बी एट होम, वी कांट डू एनीथिंग. तो आपको एजुकेशन नहीं मिला, आपको ट्रेनिंग कहीं से नहीं मिला, आपने मानो एजुकेशन नहीं करना था, आपको पढ़ाई को फर्दर परस्यू नहीं करना था, आपको जो ये आपका कहते हैं सिनेमा में जाना था आपको, या फिर कोई दूसरा फील्ड चुनना था जो कि हटके हो आपकी पढ़ाई एजुकेशन से, लाइक आपने क्रिकेट को चूज़ करना था, तो उसमें हो जाता है कि इफ़ यू आर नॉट मच एजुकेटेड देन इट्स फाइन. या आपको कोई दूसरी चीज़ परस्यू करनी थी रादर देन एजुकेशन, है ना, देन यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, या तो एजुकेशन या ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. मेडिकल केयर इज़ द मस्ट. ठीक है. अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू योर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल नहीं जा रहे हो 10 दिन से, द रीज़न इज़ कि यू हैव फीवर, यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, और यू हैव फ्रैक्चर, है ना. अब अगर आपकी फ़ीवर है एंड यू डोंट नो द रूट रीज़न की बीमारी क्यों हुई, फीवर क्यों हुआ, डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवा नहीं लिया, सो मे बी वो बढ़ता जाए एंड आपकी जो हेल्थ है इट वुड फर्दर डिक्लाइन. ठीक है. सो अगर आप मेडिकल केयर नहीं लेते हो, आपको एजुकेशन का लॉस होता है, ट्रेनिंग का लॉस होता है, एंड ये जो मेडिकल केयर है ये एक तरह से एक ऐसी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन केस कि सब्ज़ी में अगर कोई खराबी आ गई, सो यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन करेक्ट इट. ठीक है. सो मेडिकल केयर इज समथिंग कि अगर कोई बीमारी या कुछ खराबी आ गई एक ह्यूमन बॉडी में, वो उसको ह्यूमन रिसोर्स बनने से रोक रही है, तो दवा ववा दे करके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन अगेन. सो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक. नाउ स्टॉक का क्या मतलब है? सो ट्राई टू कैच दिस वर्ड, अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम.
आज के टाइम में ड्यूरिंग कोविड-19 लोगों ने ना अपने मतलब स्कूल जा रहे थे आप कोई आपके पेरेंट्स दे वर गोइंग टू ऑफिस, तो हम सबका बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। समहाउ हमारे पास अपनी स्किल को दर्शाने का टाइम नहीं होता था। अब वो लोग जो अपनी स्किल को परस्यू कर रहे थे दैट इज़ फाइन फॉर देम, बट अदरवाइज लाइक अभी हम अपने पढ़ाई में इतना बिजी हो चुके थे कि इवन हम भी अपनी स्किल्स को नहीं बता पा रहे थे। ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड हमारे को हमारी स्किल्स पता चली हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और हमें पता चला है कि यार मेरी पेंटिंग कितनी बढ़िया है। मैंने आज तक कभी भी पेंटिंग नहीं करी, मुझे तो पेंटिंग करने से डर लगता था। ई आई वॉज फियर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ दिस पेंटिंग वाला शब्द, मुझे तो उस पेंटिंग से डर लगता था। देन कई लोगों ने अपना डांस परस्यू किया कि मैंने भाई 3-4 साल पहले डांस छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज मुझे स्टडी करनी थी, जस्ट बिकॉज जॉब से टाइम नहीं मिलता था। एंड अब आपने जब डांस अपना या जो स्किल परस्यू किया, सो आपने अपनी ऐसा लगा होगा कि हाउ मच स्किल आई एम अ स्टॉक ऑफ स्किल्स, राइट। सो स्किल्स बहुत सारी है हमारे में, जस्ट द थिंग इज कि उसको कैसे पुट फॉरवर्ड किया जाए। आजकल के टाइम में इन टुडेज एरा गवर्नमेंट इज डूइंग a lot it is doing a lot in the field that how people can again see their skills again, how they can relieve their skills again, कैसे आप अपनी फिर से स्किल्स को जी सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। ये जो स्किल्स है ये आपको भी हैप्पीनेस देती हैं एंड दे आर समहाउ गुड फॉर द नेशन। आपको अमेरिका का, मैं जापान का एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कभी भी एग्ज़ाम फेयर नहीं रहा, यहाँ के बच्चों में कभी एग्ज़ाम फेयर नहीं रहा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से बच्चों को खिलाया, बचपन से ही उनको गुड्डा गुड्डी नहीं खिलाए। दे वर गिवन दीज कंप्यूटर्स, दे वर गिवन स्मार्टफोन्स and they were given the chances to explore their skills and productive knowledge embodied in them। प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम का ये मतलब है कि जो नॉलेज हमारे अंदर है जो एक प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। तो हमारे अंदर स्किल है, हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे पास सब कुछ है। जस्ट द थिंग इज हमें अच्छी एजुकेशन दो, हमें ट्रेनिंग दो और हमारे को अच्छी मेडिकल केयर दो, वी आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स। Now, people as a resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skills and ability। तो what is people as a resource? यहाँ पे रिसोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल। हु इज़ वैल्यूएबल हेयर? पीपल इज़ वैल्यूएबल हेयर। नाउ ये जो चैप्टर है बेसिकली डील्स विद कि हाउ द कंट्रीज पॉपुलेशन कैन बिकम अ रिसोर्स, कैसे एक रिसोर्स, कैसे ये कैपिटल बन सकती है। क्या करना है, लोगों को नहीं बदलना है। द थिंग टू डू इज़ कि उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्किल है और एबिलिटीज़ हैं उनको आपको आगे बढ़ाना है। सो पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल, जो कंट्री में लोग हैं, in terms of their existing productive skills and abilities। ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लगा कि what they are trying to say। You don't have to learn this definition, neither you have to write down it anywhere in the exam। जस्ट to try to understand कि इतना सा यहाँ पे बात बोला है पीपल एज अ रिसोर्स। ये एक चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि जो भारत की, हमारे देश की, इंडिया की जो पॉपुलेशन है कैसे हम इसको रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को यूज़ करके उन्हें एक रिसोर्स बना सकते हैं। लुकिंग एट पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट। प्रोडक्टिव आस्पेक्ट का मतलब है कि ये नेशन को भाई कुछ देगा। अभी देखो ना व्हाट वी आर डूइंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसा पर्सन जो लायबिलिटी है, मानो
लाइबिलिटी कौन हो सकता है? सी ओल्ड एज पीपल, दे आर नॉट लाइबिलिटी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेट मी क्लियर दिस थिंग। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एजड पीपल होते हैं, दे आर अ लाइबिलिटी, बट दे आर नॉट अ लाइबिलिटी। इन्होंने बहुत कुछ नेशन को दिया है। वेन दे वर यंग दे डिड अ लॉट फॉर द नेशन, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 59 दे बिकम रिटायर्ड, उनका रिटायरमेंट हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट दे even can pursue their skills at home. Like for example, let me tell you about my one relative. So वो मेरी एक relative है, and after you know now she is 60 plus, and now she is pursuing her skill, that is painting. कि उनको painting is a lot of her painting is very good and she like to do a lot of paintings. So what she do today is she make many beautiful paintings, she design beautiful paintings, she sell them, she even become a teacher now, she has become a teacher now. Now she is not in India है ना, बट यस इंडिया आते जाते रहते हैं। उनका जो मतलब एंसेस्ट्रल हाउस है, दिस दैट एंसेस्ट्रल हाउस इज ऑब्वियसली इन इंडिया। सो अभी तो वो सिंगापुर है, बट व्हाट दे डू, उनका इंडिया से बहुत बढ़िया कनेक्शन है, वो न्यूज़ में भी आते रहते हैं, है ना। सो वो क्या है ना कि वहाँ पे शी 60 प्लस, अपना 60 ईयर्स से पहले है ना उन्होंने अपना काम, अपना जॉब किया, एंड आफ्टर दैट उन्हें लगा कि मैंने ये जॉब वगैरह जो कुछ भी किया, इट वॉज समथिंग, जो मैंने एजुकेशन लिया वो सब था, बट जो मेरी एक इनबिल्ट क्वालिटी है, आई नो आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड आई शुड परस्यू दैट, बिकॉज नाउ आई एम ऑब्वियसली अ लाइबिलिटी इफ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। यस, मैं लाइबिलिटी बन जाऊंगी, सो आई डोंट वांट टू बी अ लाइबिलिटी ऑन एनीबडी। उन्होंने क्या किया, अपना पैशन परस्यू किया, पेंटिंग बहुत पसंद है, एंड आज वो इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग करती हैं कि वो मार्केट में बिकता है। उसके अलावा वो न्यूज़ चैनल्स पे आती हैं। उसके अलावा द अदर थिंग इज़ कि वो पैसे कमाती हैं उससे, और वो और बच्चों को ट्रेन करती हैं इन इंडिया ऑल्सो, वो ट्रेन भी करती हैं। अभी ये कोविड की वजह से वो सिंगापुर हैं, क्योंकि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो वहाँ रहते हैं, अदरवाइज शी इज़ इन इंडिया ओनली। सो वो इंडिया में ही टीच करती हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पे वो ये पेंटिंग वगैरह सिखाती है। तो ऑब्वियसली एजेड पीपल आर नॉट एट ऑल अ लाइबिलिटी on the population, right? On the nation, sorry, on the nation. Who are then liability? तो liability वो लोग होते हैं जो कि अपनी यूथ या अपने इस एज में, जब उनको अपना स्किल परस्यू करना चाहिए या उनको अपना पैशन परस्यू करना चाहिए, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी एजुकेशन है, उसको आगे ले जाना चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर केवल बैठ कर के देश का पैसा इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर नीड्स, देयर ग्रीड्स, देन दे आर अ लाइबिलिटी। तो बेसिकली लाइबिलिटी वो लोग होते हैं, इन सीधी सादी भाषा, दोज हु डोंट डू एनी वर्क एंड दोज हु आर नॉट कंसिडर्ड प्रोडक्टिव फॉर द नेशन। जो नेशन के लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव कंसिडर्ड नहीं होते हैं, उन्होंने नेशन के लिए कुछ भी नहीं किया होता, ठीक है। सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट, ये कुछ दे सकता है जो पॉपुलेशन है, जो पढ़ा लिखा है, वो emphasis its ability to contribute the creation of the gross national product, that is GNP. You have GDP and GNP, दो चीज़ें हैं, not to be in much detail, but let me tell you simple वाला, that gross national product का मतलब है, gross means एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, नेशनल पूरे नेशन की, प्रोडक्ट यानी आउटपुट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि काम करते हैं, जो कि सिटीजन्स इंडिया में काम करते हैं, इंडियंस जो इंडिया में काम करते हैं, या वो इंडियन सिटीजन्स जो बाहर भी काम कर रहे हैं ना, they all contribute to this GNP. So GNP is in India and as well as
जो इंडिया के और सिटीजन्स बाहर कहीं रह रहे हैं उनको भी ये रेफर करती है जीएनपी। सो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये क्या करती है, इट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो अ रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन बींग्स क्या है, what we are. So, population is a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. तो जब हम एक नेगेटिव साइड की ही बात करेंगे तो हमारे को पॉपुलेशन केवल एक बोझ, केवल एक लायबिलिटी नज़र आएगी। बट अगर हम पॉजिटिव साइड में या पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करते हैं सो वी कैन से दैट दिस पॉपुलेशन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब व्हाट वी डू नेगेटिव साइड की बात करें सो वी ओनली कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड। खाना दो, एजुकेशन दो, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, इतना कुछ करना पड़ता है। बट वाई आर वी इग्नोरिंग द आउटपुट वी गेट? सो व्हेन वी गिव दिस मच ऑफ इनपुट टू दिस पॉपुलेशन द आउटपुट वी गेट इज ह्यूमन रिसोर्स। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है, जब हम बहुत सारा उसमें इनपुट डालते हैं लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, एंड देन वी गेट अ ह्यूमन रिसोर्स। सो व्हेन द एग्जिस्टिंग human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it a human capital formation that adds to the productive power of the country just like the physical capital formation. So क्या है ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स को जब हम फर्दर डेवलप करते हैं, उनको और एजुकेशन देते हैं और उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, सो ह्यूमन रिसोर्स ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है। सो ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, उन्हें हेल्थ देते हैं अच्छी। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या हम हैं? सो यस, वी आर अ ह्यूमन रिसोर्स, वी आर अ ह्यूमन रिसोर्स। अब जब हमें एजुकेशन मिल रहा है, हमको अच्छी हेल्थ मिल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड जिस दिन हम डॉक्टर बन गए, जिस दिन हम अच्छे इंजीनियर बन गए, जिस दिन हम नेशन के लिए प्रोडक्टिव साबित हो गए ना, सो वी आर गोइंग टू बिकम अ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स जब एजुकेशन दिया जाता है उसे और जब उसे अच्छी हेल्थ दी जाती है तो वो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है। और जब वो कुछ निखर के बन के आ जाता है उसे हम फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है इट्स जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। Now investment in the human capital, how we invest on the human capital? Through education, through training, through medical care. तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग, वी प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल केयर टू द ह्यूमन रिसोर्स। दैट इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स गिव्स यू द ह्यूमन कैपिटल। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, तो आपने इसमें क्या क्या किया, एजुकेशन भी दिया, ट्रेनिंग भी दिया, मेडिकल केयर भी दिया, yields a return just like the investment in the physical capital. ठीक है, this can be seen directly in the form of higher income earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained persons. तो आप जितने प्रोडक्टिव पीपल बनाओगे, जितने ऐसे लोग बनाओगे जो कि ह्यूमन कैपिटल हैं, तो उतनी ही अच्छी जो है ना इनकम वो जो है वो अर्न हो सकती है। ठीक है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल। तो अच्छी हेल्थ दो लोगों को, अच्छी एजुकेशन दो, यू आर गोइंग टू गेट हायर इनकम अर्न। ओके, नेशन को भी अच्छी इनकम मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ जीडीपी और लोग भी खुश रहेंगे, उनको भी सैलरी मिलता रहेगा।
Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in indirect ways because the advantage of more educated or the healthier population spread to those also who themselves are not directly educated or given healthcare. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी फॉर दिस. सो यू हैव ए एंड यू हैव अदर पर्सन बी. ए जो था, ए ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों की एजुकेशन पे और अपने मतलब अच्छी हेल्थ पे. तो उनके जो ए के जो चिल्ड्रन थे, दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड, नाइदर दे डू हैव वेरी गुड हेल्थ. दैट इज़ वाई दे वुड नॉट बी एबल टू बिकम अ ह्यूमन कैपिटल. फाइन. बी जो था, बी ने ध्यान रखा कि एजुकेशन भी दिया, अच्छी हेल्थ भी दिया, सो दैट वो ह्यूमन कैपिटल बन गए उसके जो चिल्ड्रन थे. अब जो ए के ये बच्चे थे, है ना, जिन्होंने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, जिन्होंने ये सब कुछ नहीं लिया, और जो बी के थे, बी के तो और आगे निकल गए थे. बी के बच्चे और ए के, ठीक है. नाउ ये जो बी के बच्चे थे, दे फर्दर डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. इन्होंने अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दिया और अच्छे से ट्रेन किया. बी के बच्चों ने अपने और बच्चों को, ए ने भी अपने चिल्ड्रन को, और ए ने जो था अच्छी एजुकेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया. अब ए के जो चिल्ड्रन थे, दे डिसाइडेड कि जो बी है ये तो बहुत आगे निकला जा रहा है, बी का जनरेशन तो बहुत आगे निकल गया है, वी ऑल्सो हैव टू गिव सम इनपुट टू मेक ए वाला जनरेशन मोर गुड. सो अब ए वाले जनरेशन ने भी बहुत आगे क्या किया, उसको पढ़ाई दिया. एन ई जो मतलब नॉन एजुकेटेड थे, इन्होंने अपने चिल्ड्रन को बहुत अच्छी एजुकेशन दिया, अच्छे से ट्रेन किया. दैट मीन्स क्या हुआ, जब बी का फैमिली अच्छा हुआ तो दूसरा फैमिली भी अच्छा हो गया, है ना. सो सोसाइटी क्या करती है, दे आर द कॉपी कैट्स, राइट. जैसे बी ने पहले से ही ध्यान रखा एजुकेशन का, उन्होंने अपने चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाया, फिर उनके चिल्ड्रन अच्छे से पढ़े. लेकिन ऑन द अदर साइड जो अनएजुकेटेड क्लास थी, उसने सबसे पहले तो अपने जो चिल्ड्रन थे उनको अनएजुकेट किया. लेकिन अब वो जो अनएजुकेटेड क्लास अब आई थी, सेकेंड जनरेशन वाली, दे डिसाइडेड कि ये जो वाला है ना एजुकेटेड, ये तो बहुत आगे निकल गया है, वी ऑल्सो हैव टू गिव some input to this human resource, to these human beings, to make them a human resource and then a human capital. तो उन्होंने भी फिर अब डेवलपमेंट किया. सोसाइटी से कॉपी कैट, वो देखती है कि दुनिया क्या कर रही है, फिर हम क्या करते हैं. So, दो लोग थे, उन्होंने जो किया वही हमने किया, लाइक दिस. ओके. सो सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज. की सोसाइटी में क्या होता है, एक पर्सन जो है ना वो पढ़ा लिखा बनता है तो और लोग भी इससे इंस्पायर होके वो भी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो मोर एजुकेटेड और जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो इंस्पायरिंग, मतलब वो एक तरह से आइडल बनती है फॉर द अदर पीपल. ठीक है. सोसाइटी इज अ कॉपी कैट जो और लोगों को कॉपी करती है. सो जो एजुकेटेड या हेल्दी पॉपुलेशन है वो क्या बनती है, वो फैलती जाती है. कहाँ तक, जो नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड या गिवन गुड हेल्थ वाली सोसाइटी है वहाँ तक. और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से वो फर्दर एजुकेशन का जो नारा है वो आगे बढ़ता है और लोग फिर अपने जो चिल्ड्रन है उनको एजुकेटेड करने लग जाते हैं. इनफैक्ट जो ह्यूमन कैपिटल है इज़ इन वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज. लाइक लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, ये कब यूज़ आएंगे, जब ह्यूमन बींग्स होंगे. अगर आज इस धरती पे ह्यूमन बींग्स ही नहीं है तो कौन यूज़ करेगा ज़मीन को, कौन यूज़ करेगा ट्रीज़ को, कौन यूज़ करेगा मनी को. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स गिव्स बर्थ टू अदर रिसोर्सेज, ये भी कहा जाता है. लैंड कैपिटल, एक सेकेंड मैं इसको, cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. तो पहले स्पेशली ड्यूरिंग द पार्टीशन हमारे नेशन को एक लाइबिलिटी माना जाता था, उसको एक एसेट नहीं माना जाता था.
अब जो है अब एक एसेट माना जाता है, क्योंकि अब आज के समय पे वैल्यू पता चली है ऑफ एजुकेशन, ऑफ गुड हेल्थ। अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो कोई पर्सन एक ह्यूमन कैपिटल आराम से बन सकता है। अमेरिका, जापान की एग्जाम्पल्स हैं, यू शेल रीड अबाउट दैम। But a large number या large population needs not to be a burden for the economy। तो इतनी बड़ी population है, ऑलमोस्ट 140 करोड़ की population को बिल्कुल भी एक burden नहीं समझना चाहिए। They all can become productive and fruitful for the nation if we use them like शाही पनीर वाला सब्जी। सो अगर शाही पनीर को बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी महंगी चीज़ें चाहिए होंगी, तभी अच्छी डिश बनेगी। वैसे ही एक बढ़िया एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट विच हैज़ टू बी इन्वेस्टेड आर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड गुड मेडिकल केयर। So it can be turned into a productive asset by investment in the human capital। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उन पे। कैसे? हम उन पे मनी स्पेंड करेंगे, मनी स्पेंड करेंगे उनकी एजुकेशन पे, उनकी गुड हेल्थ पे। फिर उनको हम और ट्रेनिंग देंगे ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ सिखाएंगे, उन्हें हम साइंटिफिक रिसर्चेस सिखाएंगे। आपको एक बात पता है, इन इंडिया आवर फार्मर्स आर ट्रीटेड एज वेरी लो क्लास पीपल, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका बिकॉज आज के करंट टाइम पे, करंट एरा में वही एक नेशन है, एक कंट्री है जो लगता है हमें कि बहुत आगे बढ़ती है, तो वही असली बात भी है। तो एक्चुअली क्या था कि अमेरिका में, अभी सी आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर विद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वैसे तो ये जो बात है ये नॉर्थ अमेरिका की है, बिकॉज मैंने नॉर्थ अमेरिका के बारे में ही अभी तक ये बात सुनी है ना, कि वहाँ पे इन इंडिया आर फार्मर्स आर ट्रीटेड एज लो क्लास पीपल, बट in especially or particularly North America, the farmers, they are not treated as the low class people, they are treated as good high level businessmen। उनके पास बहुत बड़ी हेक्टेयर 150 हेक्टेयर्स की ज़मीनें होती हैं, उनके पास फुल टूच टेक्नोलॉजी होती है जिसको वो यूज़ करते हैं, एंड उसको यूज़ करने के बाद वो बहुत बढ़िया तरह से एग्रीकल्चर करते हैं और बहुत सारा अच्छा प्रोडक्शन वो ले पाते हैं। और वहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम है जो लोग करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हम ये करेंगे हम अमीर बनेंगे। और इंडिया में एक किसान की हम जानते हैं कैसी हालत होती है, राइट। सो यही सारी बातें हैं, सारा खेल एजुकेशन का है, सारा खेल अच्छी हेल्थ एंड ट्रेनिंग का है, दैट्स ऑल। अभी स्टोरी ऑफ सकल है, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि सकल एक एजुकेटेड पर्सन है, उसने खूब पढ़ाई लिखाई की, विच एडेड सकल की जो एजुकेशन थी, गुड ट्रेनिंग थी, हेल्थ अच्छी उसकी थी, विच एडेड टू मेक हिम अ वैल्यूएबल पर्सन, उसकी वैल्यू आ गई। इसका एक दोस्त मान लो आप विलास था। अभी जो विलास था, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही वॉज नॉट गिवन गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, एंड उसने वही अनस्किल्ड काम किया लाइक हिज मदर ऑफ फिशिंग, है ना। सो इस वजह से वो एक वेल डेवलप्ड पर्सन नहीं बन पाया, राइट। सो लेट अस रीड हेयर इन 2 केस स्टडीज़। अब वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, आई वुड प्रेफर यू टू रीड देम, बिकॉज मैंने आपको इन शॉर्ट बना दिया है, क्योंकि इधर भी अभी हम रीड करेंगे, वहाँ पे भी इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन प्रॉपर स्टोरी देखनी है तो वो आपको ब्लू बॉक्सेस देखने पड़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग थ्रू देम। सो इन 2 केस स्टडीज साकल वेंट टू स्कूल। अब साकल भाई साहब तो स्कूल गए थे, विलास डिड नॉट गो टू स्कूल, विलास अंकल स्कूल नहीं गया। अब हम देखिए, जो सकल है ये पढ़ा लिखा बन गया और विलास भाई साहब ये पढ़े लिखे नहीं बने। ओके, सो लेट बी वेरी इंटरैक्टिव विद द चैप्टर।
तो ये सकल अंकल, विलास अंकल हैं। आप दो अंकल को जानते हो, ये आपके पापा के फ्रेंड हैं। आपके पापा के फ्रेंड ने बताया, सॉरी आपके पापा ने आपको ये बताया कि मेरे दो फ्रेंड थे, साकल और विलास। साकल तो बहुत बड़ी चीज़ बन गया, विलास तो बहुत ही छोटी चीज़ रह गया। साकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। साकल क्या था? फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। मतलब साकल हेल्दी था, देखो वो अच्छी हेल्थ, उसके पेरेंट्स ने उसको प्रॉपर हाइजीन दिया था, उसको गुड न्यूट्रिशंस दिए थे, अच्छे न्यूट्रिशंस दिए थे, उसमें किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं थी, उसकी पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती थी। सो देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ एथराइटिस। वो एथराइटिस एक डिजीज है, उसका पेशेंट था विलास। तो ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। अभी देखो ये बीमार था, ठीक है, अब ये बीमार था और ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाता था। अब ये जो चीज़ है ना, ये और कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्शन ऐड कर देती है। वो बेचारा विलास जो था, ये एथराइटिस का पेशेंट था और इसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जा सके। विलास के फादर की तो डेथ हो गई थी, है ना, पेरेंटल सपोर्ट नहीं था, गाइडलाइंस नहीं थी, प्रॉपर अपब्रिंगिंग भी नहीं थी। सो उसके बाद डॉक्टर, मतलब उसके मम्मी इतना कमाती नहीं थी कि वो डॉक्टर को ले जा सके। सकल का क्या था, एक बार बीमार हुआ होगा कभी, ऐसा तो है नहीं कि बीमार ही नहीं हुआ, होता होगा बीमार। उसके पेरेंट्स इतना अफोर्ड करते होंगे कि उसको डॉक्टर के पास ले जा सके, अच्छा इलाज करवा सके, सो दैट वो जल्दी क्योर हो जाए। सो सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सकल ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री ले लिया। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। एक प्राइवेट कंपनी में सकल गॉट अ जॉब, वाइल विलास वॉज कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। उसकी मम्मी वाला वही काम करता रह गया, वो जो उसकी मम्मी काम करती थी, ऑफ फिशिंग, ठीक है। सो सकल जो था, उसने प्राइवेट फर्म में काम किया, अच्छी जॉब उसको मिली, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा था, उसको उसमें डिग्री भी मिली थी। और विलास जो था, वो एक अनप्रोडक्टिव पर्सनालिटी बन के ही रह गया। विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। ही अर्नड मीएगर मीनिंग वेरी लेस, ठीक है। सकल वेरी जेनरस, मीएगर, विलास वेरी मीएगर। जेनरस मीन्स ह्यूज। सकल ने खूब ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम अर्न किया, वेल जो विलास था, ही अर्न मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू जस्ट सपोर्ट हिज फैमिली। अपनी फैमिली को हल्का फुल्का सपोर्ट देने के लिए ही उसने जो पैसा कमाया होता था उसको रखता था। अदरवाइज वो मनी जो था वो उसके लिए, उसकी प्रॉपर हेल्थ में, एजुकेशन में नहीं आता था। वो केवल थोड़ा बहुत खाना उससे शायद खा पाते होंगे। यू नो कि फिशिंग में कितना कमा सकते हैं मछुआरे। So in case of Sakal, several years of education added to the quality of the labor. Now we all are labor, you know. Labor word जो आज हम यूज़ करते हैं ना, कि ये तो एक labor है. That labor word is very wrong. Labor means whoever is doing work to earn money for the livelihood. आज मैं, आप या दुनिया में कोई भी व्यक्ति कमाना चाहता है सो दैट वो एक अच्छी लाइफ जी सके। शायद आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो या एक मिडिल क्लास लाइफ जीना चाहते हो, है ना। ऑल दो आप जो भी चाहते हो वो इसलिए चाहते हो जिससे कि लाइफ जी सको ना, लाइवलीहुड परस्यू कर सको, गरीबी ना रहे, भिखमंगी ना रहे, मंदी ना रहे, इसलिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। सो अब हम जो लेबर हैं, हम जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये दो तरह के हो गए हैं। एक लेबर जो क्वालिटी ऑफ लेबर है, एक लेबर ये है, और दूसरी है जो अनस्किल्ड विदाउट क्वालिटी लेबर है। लेबर हम सब है, हम थोड़ा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, कमा तो रहे हैं ना, वी आर अर्निंग मनी,
ठीक है, 10-20 रुपये तो आ ही रहे मिनिमम भी, बट वट एवर वी आर अर्निंग डिपेंड्स अपॉन कि हमने कितना एजुकेशन लिया है। जितना हमने एजुकेशन ली होगी हम उतना ही कमाएंगे, है ना। और हम वी आर अ लेबर, ठीक है, हम एक लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ लेबर बात एक ही है। हम एक लेबर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो, हम लेबर हैं। और ये जो लेबर है ये क्वालिटी लेबर तब कहलाती है जब वो पढ़ी लिखी हो जाती है और तब जाके वो बढ़िया कमाती है। और अनस्किल्ड लेबर वो कहलाती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिसके पास स्किल नहीं होती है, जिसको अपना पैशन नहीं पता होता है, वो थोड़ा बहुत मेगर कमा लेती है, जस्ट कुछ पैसे कमा सके बस। सो ये जो क्वालिटी ऑफ लेबर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैच वर्ड है, रिमेंबर इट। क्वालिटी ऑफ लेबर का मतलब है किस तरह की लेबर है, एजुकेटेड लेबर है या अनएजुकेटेड लेबर है, ठीक है। एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर दिस इनहेंस्ड टोटल प्रोडक्टिविटी। अब इससे क्या हुआ, उसने ज़्यादा अच्छा कमाया और नेशन को भी इससे फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने आईटी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया। सो टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। उसने अच्छा कमाया और अच्छा उसने जो कमाया ये नेशन की इकोनॉमी में ऐड हो गया, ठीक है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म। तो हम ये जो काम करते हैं, ये जो होता है ना, जो हम वर्क कर रहे होते हैं ये हमारी एक तरह से इनकम डिपेंड करता है कि हम कितना कमाएंगे, ठीक है। जो विलास था वो अनएजुकेटेड था, उसके पास एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं थी, अपनी लाइफ में उसने मतलब जो पीक टाइम था जिस समय वो इस एज में था कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेट गुड हेल्थ, तो उस समय नहीं अच्छी हेल्थ मिली, एजुकेशन मिली उसको नहीं मिली। सो उसने अपनी मम्मी की तरह ही सेलिंग ऑफ फिश वाला काम किया। henceforth उसने सेम सैलरी ही अर्न की एंड दैट इज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। तो क्वालिटी लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर आपको याद हो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, ठीक है, टू मेक वॉट, टू मेक अ ह्यूमन कैपिटल can give high rates of return in future in the form of good human capital. ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल। ओके, अब वी आर गोइंग टू जस्ट एंड दिस टॉपिक ओवर दे हियर। अभी ये वाला टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाला है वो बाद में करेंगे, ठीक है। लेट मी चेंज द इंक। फाइन, नाउ a child too with in 1 second, let me zoom the screen. Okay guys, so we are going to start with this in part 2. Okay, sorry कि आप लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, बट वी आर गोइंग टू डू दिस इन पार्ट 2। थैंक यू। 1 सेकेंड यार।